लाइट पे मूज हाव अब ये लाइट बला पे Bursing officers of District Anantnag, dealing assistants, other participants. We have 8 sub-treasuries and 1 district treasury. So far as the name of treasury officers are concerned, Mr. Mushtaq Ahmed Pare, who is sitting on the dais, is Treasury Officer Mutton. Mr. Mushtaq Ahmed, Treasury Officer Achabal. Mr. Ali Muhammad, Treasury Officer Shangas. Mr. Mukhtar Ahmed Zargar, Treasury Officer Kokarnak. Mr. Mukhtar Ahmed Wani, Treasury Officer Duru. Mr. Shahid Wani, Treasury Officer Wanfu. Mr. Ghulam Muhammad Wani, Treasury Officer Veed Bihada. Muhammad Yusuf Rathar, Treasury Officer Pahalgam. After that, we will present a PPT regarding this Jeevan Praman app so that our senior station as well as this union territory of JNK. I welcome you again with the core effort. Let the team from General JNK, JPN sir to come on the dice and my dear pensioners. I was indeed excited to come here. The current CAG is focusing too much on stakeholders' engagement and use of digital technology in the delivery of citizen-centric services. You must be aware that government of UT government of JNK has adopted digital policy for bringing about efficiency, transparency, delivery. Is a major stumbling block in speed of delivery. Just like when a body undergoes surgery, organs take their own time to settle down. This is what is happening. This was launched way back in April, and actually digital processing began roughly around July or so, July or August. But I find that the speed of e-processing of pension is still not up to my satisfaction. And there are problems in my office level as well. Because personally, so I mean, integrity and all. During my completion, and since recently they had adopted online maintenance of assets. It's just a technological sort of lack of knowledge, gap in knowledge that might have triggered something which excited you. Anyway, I mean, I'll not go to the end of the story. But anyway, I mean, I was just wondering. British government is saying that हर कम चीज़ को digitalize, यानी ब्रोह से पेवन पोस्ट पेवन कर check लेखन बैंक एक्सपेक्ट गसन, but now it is in our fingertips. यानी फोन चॉइस फोन पे टच गसन सोरे. अच्छा, वहीं जन pensioners concerns pensioners को various एक साथ पेवन जरूरी है बैंक एक्सपेक्ट या ट्रेजरी पे, लाइफ सर्टिफिकेट पर, यानी इसको पान पेवन present गसन. So ease out करने खातिर यानी ताकि सहूलियत आने खातिर कोर गवर्नमेंट का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कोई भी प्रोसीडिंग्स है जुडिशियल होगा या डिपार्टमेंटल होगा या सस्पेंशन पीरियड अंडरस्टैंड होगा then he cannot be denied pension. उन केसों में पीएसए का ड्यूटी है कि वो इस केस को प्रोविजन पेंशन बनाए. प्रोविजन वो मिल जाए कि प्रोविजन ऐसा होता है कि प्रोविजन कभी भी इसको बंद भी हो सकता है, रिलीज भी हो सकता है. अगर एक फ्यूचर अगर इसकी जो प्रोसीडिंग्स है उन प्रोसीडिंग में इसको जिम्मेवार ठहराया जाएगा, इसको सजा दी जाएगी, फिर सजा की वजह से अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगा
तो लेकिन उसको जब तक वो प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएगी तब तक इसको प्रोविजनल पेंशन मिलना चाहिए, और कोई भी पीएसए किसी भी एम्प्लॉय का केस नहीं रोके इस बुनियाद पर कि उसका सस्पेंशन पीरियड अनडिसाइडेड है। कोई नोटिस देता है अपने पीएसए बात जैसे कहीं पे मैंने एक क्वेश्चन सुना था कि देखिए यहाँ पे जो है वो पेंशनर कम हैं और डीडीओ ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि इस जो प्रोग्राम है उसका फॉर्मेट ये था कि ये एक जॉइंट वेंचर थी जिसमें डीडीओ, पेंशनर और पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़, ट्रेजरी और एजी, इन सब के कोऑर्डिनेशन से प्रोग्राम होना था। और मुझे लगता है कि तकरीबन 70% पेंशनर है और साथ में ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स और उसके साथ जो है ना बाकी पीएसए जो है वो इसमें शामिल है। और जहाँ तक पेमेंट का तल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े ट्रांसपेरेंसी से बहुत स्पीडी तरीके से जो है पेंशनर्स की पेंशन को डिस्बर्स कर रहे हैं। अगर कहीं पे डिले है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि जो प्रोसीजर होता है उनकी एनओसीज पेंडिंग होती हैं या डिपार्टमेंट में बहुत सारी जो है वो कागजात पेंशनर्स के पेंडिंग होते हैं जिसकी वजह से कोई डिले हो सकता है। बाकी जहाँ तक ट्रेजरी का तल्लुक है यहाँ पर कोई भी पेंडेंसी जो है मुझे लगता है नहीं होती है और हम बहुत अर्ली जो है वो डिस्पोजल करते हैं जितने भी केसेस होते हैं। और जो भी कंट्रैक्टर्स की पेमेंट है वो टाइमली बिल्कुल हमारी तरफ से प्रोजेक्ट होती हैं और अथोराइजेशन आते हुए जो है, क्योंकि आजकल पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, ई ट्रेजरी है, यहाँ पे डिले होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और एट अर्लीस्ट जो है पूरी यूटी में जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट क्लियरेंस कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी अनंतनाग इसमें एक लीडिंग रोल अदा करती है और यहाँ पे जीरो पेंडेंसी रहती है। जैसी ही अथोराइजेशन आती है वो क्लियरेंस होती है। देखिए एक तो ये है कि यहाँ पे ऑन द स्पॉट ग्रीवांसेस का इनका रिड्रेसल हो जाता है। प्लस मैंने कहा कि जो पेंशन सुविधा पोर्टल है एक नई टेक्नोलॉजी है, सबके लिए एक नई जानकारी है। हमारे पेंशनर्स स्पेशली जो क्लास 4 के हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होगी, तो ऐसे अदालत हम करेंगे और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से करेंगे तो ये एक मैसेज फैलेगा कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर होता है। वैसे वेबसाइट पे फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर के द्वारा बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं, हमारे वेबसाइट पे भी बहुत सारी सूचनाएं अपलोड की गई हैं, लेकिन ये रूबरू पर्सन टू पर्सन जो कांटेक्ट होता है तो चीज़ों को समझने में ज़्यादा सहूलियत होती है, ऐसा मेरा मानना है। सर बहुत सारी शिकायतें आ रही कि जो पेंशनर्स हैं तो वो तो बोल रहे हैं कि हमारे पेंशनर्स मुकम्मल वक्त पे नहीं मिल रहे हैं, तो इस हवाले से कोई आप उनके लिए कोई आगे इकदाम उठाएंगे? अब ये मैं नहीं कह सकता कि, लेकिन ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि 2024-25 में पेंशन में करीब करीब तकरीबन 14,000 करोड़ के आसपास खर्च हुए। तो जब पेंशन न दिया जा रहा होता इतना कैसे खर्च होता। अब जैसे आप ले लें कि ये यूटी गवर्नमेंट का जो रिसोर्सेज है वो आप टैक्स रेवेन्यू ले लें तो 15,000 करोड़ 16,000 करोड़, मैं एक रफ फिगर बता रहा हूँ, और कुछ और ले लीजिए 7-8 हजार करोड़ का नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो 20-22 के आसपास टोटल मिला करके हो रहा है। उसमें 14,000 करोड़ पेंशन पेमेंट हो रहा है। तो आप ताज्जुब मुझे लग रहा है कि कैसे किसी में डिले हो सकता है, कभी होता है, आउटगो का प्रॉब्लम यूटी गवर्नमेंट को होता होगा, तो ये लेकिन मुझे सच बात नहीं लग रही है। हालांकि ये मेरे डोमेन के अंदर नहीं आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट कहीं अंदर आता है, ट्रेजरी ऑफिसर उसको हैंडल करता है। कंट्रैक्टर से शिकायत मौसूल हो रही है कि उनको वक्त पर बिल जो है वापस नहीं की जाती है, जीपी फंड भी पेंडिंग रहता है सर? नहीं, जीपी फंड तो स्टेट गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट मेंटेन करती है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और जहां तक आप कह रहे हैं, क्या कह रहे थे? कंट्रैक्टर्स को बिले जो है वक्त पर वापस नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्टर भी समझ सर, आप जानना चाहेंगे ये प्रोग्राम क्या वाकई पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं? और जब हमने देखा यहाँ पे कि ऑनगोइंग एम्प्लॉइज है इस प्रोग्राम में, जबकि पेंशनर्स की तादाद इसमें बहुत कम है, क्या आपको नहीं लगता है कि पेंशनर्स को बुलाना चाहिए था? नहीं, डेफिनेटली मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि सबको फायदा होगा, पेंशनर को फायदा होगा, और सबसे ज्यादा फायदा इस बात का होगा कि बॉन्डिंग बढ़ता है। ये बॉन्डिंग बिटवीन पेंशनर, डीडीओज एंड माय ऑफिस। तो जानकारी जो पर्सनल होती है ना, बहुत चीजें ऐसी हल हो जाती हैं। अब जैसे कि हम लोगों के यहाँ हमने
टेलीफोन की सुविधा दे रखी है, ईमेल की सुविधा है, जेके समाधान है, बहुत सारे पोर्टल्स सूचनाएं का जो ग्रीवांस है आपको उसको लॉन्च करने का माध्यम बना है। तो मैं नहीं समझता कि पिछले 2-4 सालों के अंदर जो प्रगति हुई है 5 साल के अंदर, उसे सबको सहूलियत हुई है, सारे पेंशनर्स उससे लाभान्वित हुए हैं। सर, ठेकेदारों के हवाले से मैंने बात छेड़ी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है मुख्तलिफ कागजात का जो है अब उसमें हम लोगों का वक्त पर वागुजार मिले वो हमको हम मतलब वो लिमिटेड रोल हमारा उसमें नहीं है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का ही है, तो उसमें फाइनेंस यूटी गवर्नमेंट का ही है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही इस पे क्लैरिटी या कंसर्न डिपार्टमेंट है वही दे पाएगा। तो कोई खास बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे जो पेंशनर्स है? पेंशनर्स को मेरा मैसेज यही है कि एजी ऑफिस उनके लिए बिल्कुल खुला हुआ है। हम सब 24/7 उनकी सेवा में हैं और जो भी ग्रीवांस है वो हमें बताएं और हम जरूर दूर करेंगे। हमारा वैसे खुद का ही प्रयास रहता है कि जो पेंशन फाइल है उसको फाइल नहीं समझे, उसको एक फैमिली समझे। एक पेंशनर के साथ उनकी फैमिली भी है, तो वो फाइल नहीं है, वो फैमिली है। तो हमारे ऑफिस में भी बहुत हद तक स्पीड बढ़ा है, टेक्नोलॉजी नई आई है, तो उसमें एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीड ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज होगा, उसमें पेंशन भी एक है। तो चीजें आगे बढ़ रही हैं, आगे कुछ समय में, अब बहुत कम समय में और बहुत तेज से प्रगति होगी। हमारे सीएजी साहब का ये एम्फेसिस है कि स्टेक होल्डर इंगेजमेंट और यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी से ही लोगों की समस्याओं को समाधान किया जा सकता है।